Now, moving on to another controversy of today. Now, the centre has issued a directive mandating that the Sanchar Sathi app should be pre-installed on all phones manufactured or imported for use in India. The aim is to help people verify genuine devices and prevent misuse of telecom services. The order requires the app to be clearly visible and easy to use during the initial setup, and of any new handset, it should be there. Manufacturers are not allowed to hide, disable or restrict any of its features. Companies have 90 days to comply with the order and 120 days to file a compliance report. For devices already in stores, they are expected to add the app through software updates. Though Reuters, citing sources in Apple, said that Apple will not bow to the diktat and will not preload its phones with the app. Apple is said to be planning to convey its concerns directly to New Delhi. It is important to note that as per Communications Minister Jyotiraditya Scindia, the app can be uninstalled by the user if they want. He further clarified that this app is meant for cyber security only and it has no role in snooping or spying. Through Sanchar Sathi portal and app, users can check whether a mobile handset is genuine using its IMEI number. They can report suspected fraud calls or messages. They can report lost or stolen mobile phones. They can also see all mobile connections issued in their name. They can access trusted contact details for banks and financial institutions. कोई मैंडेटरी नहीं है. आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो. वो डोरमेंट रहेगा. डिलीट करना है तो डिलीट कर लो. पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है. तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो. जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा. A political storm had erupted over the Sanchar Sathi app, with the opposition sharply criticizing the centre, calling the directive beyond unconstitutional. Congress leaders argued that a preloaded government app that could not be uninstalled, according to them, amounted to a dystopian tool for monitoring citizens and demanded its immediate rollback, citing privacy concerns. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra described the app as a snooping mechanism, insisting that citizens must retain the right to private communication without government intrusion or oversight. She suggested that such measures were pushing the country towards dictatorship while acknowledging the need for cybersecurity systems, but emphasizing that they should not be used to access every citizen's phone. In response to the controversy, the government clarified that the app could be uninstalled. Communications Minister Jyotiraditya Scindia reportedly assured users that there was no compulsion to keep the app, seeking to address the massive row that had erupted over privacy fears. Government is saying it's for national security, so that it cannot be misused. The fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. In the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. They had used Pegasus. They had political leaders and journalists and all judges, even their own party men has been, and they were doing this with Pegasus. Now they are going to do it with an app. Now they are going to do with the app, which is going to be
only way is that every Indian is going to be snooped into it, and in a mass scale they are going to do it, which is unacceptable, and we should all protest. And because these kind of apps, these kind of activities by the government is unacceptable. संचार साथी सरकार कह रही है कि चोरी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस ऐप को लेकर वो आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए जरूरी था, वक्त की जरूरत थी। ये आप लोग कह रहे हैं कि ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है, ये हमेशा आम जनता पे नजर रखने की कोशिश हो रही है, ऐसे आरोप क्यों? नहीं तो आप लोगों, अगर आपके पास से सिंगापुर मॉडल अपनाइए ना, सिंगापुर के अंदर हर आदमी के ऊपर नजर रखी जाती है। आप कहाँ मूव कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब उनको 1 मिनट में पता चल जाता है, 1 सेकंड के अंदर। तो आप रखिए ना, आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो टेक्नोलॉजी अपनाइए। आप नॉर्थ कोरिया क्यों बनाना चाहते हो देश को, कि कौन कैसे बाल काटेगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे हंसेगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, हमको क्या खाना है, ये सब आप तय करोगे। आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप लोगों के मोबाइल के अंदर घुस करके उनकी निजता का हनन करने का काम करेंगे। किस किस की जिंदगी में स्नूप करने की कोशिश करेंगे? गुजरात से लेके दिल्ली तक स्नूपिंग एलिगेशंस रहे हैं। पहले पेगासस के हुआ था, उसके बाद कई एलिगेशंस लगे थे सरकार के खिलाफ। अब तो ये ऑफिशियल हो गया मामला। इसको हिंदुस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप टाइप कंट्रोल्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। हर एक की जिंदगी में झांकने की एक कोशिश करना चाह रहे हैं। ये सरकार का काम है। हिंदुस्तान फ्री इंडिया है और फ्री गवर्नमेंट होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गई हैं प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आपने हमेशा से जो प्राइवेसी है उसको लेके बहुत बार ये मुद्दा उठाया है। जिस तरीके का नोटिफिकेशन आया था, सरकार तो अब कह रही है कि बेतुकी बात है, ऐसा हमने बोला ही नहीं, नोटिफिकेशन में ये लिखा ही नहीं था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने पढ़े लिखे मंत्री ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और फिर कहते हैं हम लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं। बेतुका बेवजह नोटिफिकेशन तो उनकी तरफ से आया था साइबर सिक्योरिटी के आड़ में, और हमने देश भर में देखा है कोई भी लॉ जहाँ पे आपके पोस्टल कुरियर सब में ताक झांक की जा सकती है नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में जर्नलिस्ट पत्रकारों पे पेगासस के थ्रू सर्वेलेंस कराया, ऑपोजिशन लीडर्स पे स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस कराया। अब 140 करोड़ लोगों पे सर्वेलेंस कराना चाह रहे थे। दूसरी साइड उस ऐप पे नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर है कि मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेट था कि वो ऐप साथ में डालेंगे जहां जहां IMEI नंबर जनरेट होता है, और वो अनइंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो इट वुड हैव बिकम अ फीचर ऑफ अ फोन, इट वुड बी पार्ट ऑफ द हैंडसेट व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय द सिटीजंस। अब आकर क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश समझ रहा है किस तरीके से ही हमारे घरों में घुसकर, हमारे फोनों में घुसकर ये जानना चाहते हैं हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, क्या कपड़े पहनकर खाना खा रहे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। उससे रोक लगाई है, तभी आकर मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि बैक चैनल और भी कुछ सरकार कर सकती है, ऐसा कोई और नोटिफिकेशन? अगर ऐसा नोटिफिकेशन इस तरीके का जारी करेंगे या इस तरीके का काम होगा और हमारे संज्ञान में आएगा, मैं इसको पुरजोर तरीके से उठाऊंगी, क्योंकि एज फार एज आई नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया हैज इट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है कि राइट टू प्रिवेसी एक सिटीजन का अधिकार है, और अगर उस अधिकारों का हनन होगा तो मैं उसको पुरजोर तरीके से उठाती रहूंगी। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, either the calls that you receive or the calls that you make. संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी।
फ्रॉड को रोकने का है।